Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we'll start lesson number 5, factors and multiplies. So now all of you look at in your textbook. We'll start lesson number 5, factors and multiplies. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson. So student, all of you know very well what you had learned in this lesson. So first we had done the multiplies. Then after we had done the property of multiplies. So student, how many property of multiplies? 5 property of multiplies. Then after we had done the odd and even number. So which number is known as the odd number and which number is known as the even number? The number which has the completely divisible by 2. The number which have a divisible which has a multiple of the 2, this is known as the even number, and the odd number, the number which has not divided by 2, this number is known as the odd number. In the even number, last digit always 0, 2, 4, 6, 8. In the even number, last number is always 0, 2, 4, 6, 8. So number which have a last digit 0, 2, 4, 6, 8, this number is known as the even number. Then after we had done the factors. So what is the definition of the factors? A factor of the numbers divide the numbers without leaving a remainders. Factors means when we are divide any numbers, so after the doing division we will get remainder is the 0, means this is the factor of this number. For example 24. So 24, when we are divided 24 by a 1, so we will get 1 is the 1 we will get the 1 and 24 are the factor of the 25. Then we will do divide by 2. So when we will do the divided by when we are divided by 24 by 2, so we will get the 12 is the 12 is we will get the quotient, means 12 and 2 both are the factors of the 24. अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते, जैसे 24 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा 12 एंड रिमाइंडर मिल जाएगा 0, मीन्स 0 मिल रहा है, मतलब 24 क्या हो गया है, 24 का फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे 12 एंड 2 हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर डूइंग द डिवीजन वी विल गेट द रिमाइंडर इज द 0. डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब वो फैक्टर्स हो गए. Then after we had done the factor tree. In the factor tree we are take out the factors of the number up to that number will be in the number in the prime number. हम numbers के factor निकालेंगे जब तक वो क्या नहीं होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होता है. एंड नाउ व्हाट इज द प्राइम नंबर? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the itself number, this number is known as the prime number. For example, now example 6 factor is 3 into 2. Now we will not take out the factors of 3 and 2. यहाँ पे हम 3 और 2 के फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि now 3 और 2 ये दोनों भी कौन से नंबर हो गए हैं, प्राइम नंबर हो गए. यहाँ पे देखो 12 है, 12 के फैक्टर 6 into 2 निकला है, और यहाँ पे 6 और 2 इसमें से 2 के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, तो हमने 2 को एज इट इज नीचे लिख दिया है. बट यहाँ पे 6 के फैक्टर्स निकलते हैं, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, इसलिए हमने 6 के फैक्टर्स क्या निकाल दिए, 3 into 2. नाउ 3, 2, 2 इसके फैक्टर्स निकलते हैं क्या, नहीं निकलते, तो हम इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे. तो हम जब फैक्टर्स निकालते हैं ट्री में, तो हम नंबर के फैक्टर जब तक निकालेंगे जब तक वो प्राइम नहीं आता है, और वो उसके फैक्टर जब तक निकलते हैं तब तक हम निकालेंगे. जैसे 24, 6 into 4 करेंगे तो 24 होता है, 6 के फैक्टर्स निकलते हैं और 4 के भी फैक्टर्स निकलते हैं. 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 into 2 होता है, एंड 4 के फैक्टर्स होते हैं 3 into 3, तो 2 into 2. तो 6 के फैक्टर 3 into 2
एंड 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 4। अभी 3 और 2 के भी फैक्टर्स नहीं निकलते हैं एंड 2 के भी फैक्टर्स नहीं निकलते, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स नहीं निकालेंगे. सो लाइक दैट वी हैड डन द फैक्टर ट्री. Now prime number and composite number. So which number is known as the prime number? The number which have only two factors, one and the itself number. This number is known as the prime number. And what is the meaning of the composite number? The number which have a more than a two factor. This number is known as the composite number. Then after we had done the property of the factor. So how many property of the factor? 4 property of factors. Then after we had done the exercise 5.4. Then after we had done the twins prime number. So which number is known as the twins prime number? The two prime number which have a differ is the 2. This is known as the twins prime number. Then after we had done the common factor. When we had take out the factor of the any numbers, factor of the two numbers, after they take out the factor of the two numbers, then after we will see the which number is the common. Which number is the common? This number is known as the common factor. Then HCF. HCF means highest common factor. After the taking common factors, then after we will see the which number is the higher. This number is known as the highest common factor. Then after highest common factor, HCF is also known as the greatest common divisor. This is also known as the greatest common divisor, GCD. Then after we had done the co-prime number. So co-prime number means the number which have only one is the common factor. This number is known as the co-prime number. For example, now here 15 and 16, after the take out the factors of 15 and 16, there is the one number is the common factor. So that number is known as the co-prime number. Now exercise 5.5 question number A we had done in our last class. Now we will start question number B. Which of the following pairs of the number are co-prime? Which of the following pairs of number are co-prime? So co-prime means the number which have only one is the common factor. This number is known as the co-prime number. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स जो नंबर दिया है इसके फैक्टर्स निकालेंगे. आफ्टर द टेक आउट फैक्टर्स देन वी विल सी दे हैव अ कॉमन विच नंबर. आफ्टर टेक आउट द कॉमन फैक्टर, अगर 1 उसमें कॉमन आता है तो वो को प्राइम होता है, अगर नहीं है तो वो को प्राइम नहीं होता है. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन द नोटबुक क्वेश्चन नंबर बी. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर बी फर्स्ट एग्जाम्पल 17 एंड 15. हमें निकालना है कि वो को प्राइम है कि नहीं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. द फैक्टर्स ऑफ 17 आर. 17 के फैक्टर्स क्या होंगे. नाउ 17 इज द प्राइम नंबर. 17 क्या है, प्राइम नंबर है. सो यहाँ पे हमने लिस्ट भी निकाली थी. देखो प्राइम नंबर की लिस्ट में 17 प्राइम नंबर आता है. सो व्हाट इज द प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव अ 1 एंड द इटसेल्फ नंबर इज फैक्टर. दिस नंबर इज नोन एज द प्राइम नंबर. तो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 17 हो जाएंगे. ठीक है. नाउ 15 के फैक्टर्स निकालेंगे. द फैक्टर्स ऑफ 15 आर. 15 के फैक्टर क्या आएंगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है. फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, एक तो हमें वो नंबर वो कौन से टेबल में आता है वो पता होना चाहिए. अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे. तो 1 ये सारे नंबर्स का फैक्टर्स होता है, तो 15 का फैक्टर 1 हो जाएगा. देन 15 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं. देन 3 के टेबल में, यस 3 5 15. देन 4 के टेबल में आता है, नहीं. देन 5 3 15. देन 6 7 8 9 10, फिर वो डायरेक्ट 15 आता है 15 के टेबल में. 15 डायरेक्ट किसके टेबल में आता है, 15 के टेबल में. अभी हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. तो यहाँ पे हम लिख देंगे द
common factors of 17 and 15 are. इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? नाउ कॉमन फैक्टर इज हियर ओनली वन नंबर. अगर आप दोनों को फैक्टर देखोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ वन नंबर ही कॉमन आएगा. तो नाउ हियर कॉमन फैक्टर इज द वन. सो दिस इज द co-prime number. Yes. So 1 is the number which have a 1 is the common factor. This number is known as the co-prime. So 17 and 15 is the co-prime number. Yes. So 17 and 15 are co-prime. क्या ये co-prime नंबर है? क्योंकि इसमें वन नंबर ही कॉमन है, तो ये क्या है? को-प्राइम नंबर है. देन एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 इज द 10 and 16. 10 and 16. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 and 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. द फैक्टर्स ऑफ 10 आर. 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1. देन 2 के टेबल में 10 आता है. 3 के टेबल में आता है क्या? 4 के टेबल में आते हैं क्या? नहीं. देन 5. यस 5. देन 6, 7, 8, 9 और लास्ट इज द 10. 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 5 एंड 10. ये 10 के फैक्टर्स हो गए. नाउ हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स ऑफ 16 आर. 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1. देन 2. यस 2 इज द फैक्टर्स ऑफ 16. देन 3. नो. देन 4. यस 4 4s are 16. देन 5. नो. 6 3s are 18. 6 है क्या? नहीं. देन 7. नो. 8 एंड लास्ट इज द 16. 16 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 8 एंड 16. ये 16 के फैक्टर्स है. अभी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 16 आर. दोनों में कॉमन क्या है? 1 and 2 दोनों में कॉमन है. 1 and 2 कॉमन है. दोनों में कॉमन क्या है? 1 and 2 कॉमन है. तो ये को-प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 and 16 आर नॉट को-प्राइम. ये क्या नहीं है? को-प्राइम नहीं है. क्यों को-प्राइम नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 16 और 10 के फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं? 1 and 2 ये फैक्टर्स निकल रहे हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को-प्राइम नंबर? द नंबर विच हैव ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर. दिस नंबर इज नोन एज द को-प्राइम नंबर. तो इसमें कॉमन क्या है? 1 and 2 दोनों भी कॉमन है. तो 10 and 16 क्या नहीं है? को-प्राइम नंबर नहीं है. देन एग्जाम्पल नंबर 3. 9 and 11. सो सबसे पहले हम 9 के फैक्टर निकालेंगे. द फैक्टर्स ऑफ 9 आर. 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3 एंड 9. 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3 एंड 9. ये 9 के फैक्टर्स होंगे. देन 11 के फैक्टर. द फैक्टर्स ऑफ 11 आर. सॉरी 11 के फैक्टर्स क्या होंगे? नाउ 11 इज द प्राइम नंबर. सो 11 क्या है? प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर मतलब द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द इटसेल्फ नंबर. दिस नंबर इज नोन एज द प्राइम नंबर. तो दोनों 11 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 11. ये 2 फैक्टर्स है. नाउ अगेन वन थिंग ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. अगर 2 नंबर्स है उसमें से अगर 1 नंबर अगर प्राइम होता है और दूसरा कंपोजिट होता है. अगर 2 नंबर्स है 2 नंबर्स में अगर 1 नंबर प्राइम से और 1 नंबर कंपोजिट है
तो वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। क्योंकि को प्राइम में क्या होता है, नंबर विच हैव प्राइम मीन्स क्या होता है, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, 1 एंड द इटसेल्फ नंबर। जैसे यहाँ पे 11 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 11 है, और 9 के फैक्टर्स क्या है, 1, 3 एंड 9 है। तो यहाँ पे 11 प्राइम नंबर है, तो इसके और कोई फैक्टर्स है क्या, नहीं है। अगर 2 नंबर्स दिए उसमें से एक को प्राइम, एक कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है और एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है और एक प्राइम नंबर है, तो उस समय वो नंबर्स क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर 2 नंबर्स है और दोनों भी नंबर प्राइम नंबर है, उस समय भी वो नंबर को प्राइम हो जाएगा, उसमें भी वो नंबर को प्राइम हो जाएगा। नाउ इसमें कॉमन क्या है, 1 ही कॉमन नंबर है। सो 9 एंड 11 क्या है, को प्राइम नंबर है। सबसे पहले हम लिख देंगे द common factors of 9 and 11 are, दोनों में कॉमन क्या है, 1 नंबर ही कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 1 नंबर ही कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 and 11 are co-prime. 9 and 11 are a co-prime। ये क्या है, co-prime है, क्योंकि इसमें 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 4, 20 and 24। 20 and 24। सो हम पहले 20 के फैक्टर निकालेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं। देन 4, देन उसके बाद 5, 6 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं। 7 नहीं, 8, 9 डायरेक्ट 10 एंड देन लास्ट इज द 20। 20 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। दिस आर द फैक्टर ऑफ 20। नाउ फैक्टर्स ऑफ 24। द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3 also factors of 24, then 4 yes, then 5 no, 6 yes, 7 no, 8 yes, 9 no, 10 no, then उसके बाद 12 and last is the 24। 24 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24। These are the factor of 24। अभी दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 24 आर, दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, देन 3 क्या, नहीं। 4 कॉमन है, 5 नो, 6, 7, 8, 9, 10 नो। सो इसमें कॉमन क्या है, 1, 2 एंड 4। दीज आर द कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, 1, 2 एंड 4। दीज आर द कॉमन फैक्टर। तो ये को प्राइम होगा क्या, नहीं। को प्राइम में क्या होता है, 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है। तो 20 एंड 24 आर द को प्राइम नंबर, नो। 20 एंड 24 आर नॉट को प्राइम। तो ये को प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन 1, 2 एंड 4 आ रहा है, इसलिए। देन 5 नंबर्स 18 एंड 12। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 6 3, देन 4 होगा क्या, नहीं। देन 5 नो, देन 6, 7 नो, 8 नो, 9 यस एंड लास्ट इज द 18। 18 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3, 6,
9 and 18, these are the factor of 18. देन हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे. द फैक्टर्स ऑफ 12 आर. 12 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, no, 6, no, 7, no, then 8, no, last is the 12. 12 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. दिस आर द फैक्टर ऑफ द 12. अभी हम यहाँ पे लिख देंगे द कॉमन फैक्टर्स of 18 and 12 are. दोनों में कॉमन क्या है? 1, 2, 3, 4 है क्या? नहीं. देन 6, यस. दोनों में कॉमन क्या है? 6. देन 9 है क्या? नहीं. 18 है क्या? नहीं. 12 है क्या? नहीं. तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1, 2, 3 and 6. दीज आर द कॉमन नंबर. नाउ हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? कॉमन हो गया है. ये को प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? 1, 2, 3 and 6. दीज आर द कॉमन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 and 12 आर नॉट को प्राइम. ये दोनों नंबर क्या नहीं? ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 6. ये नंबर्स कॉमन आ रहे. तो दिस नंबर इज नॉट अ को प्राइम नंबर. देन एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 इज 8 and 10. तो हम पहले 8 के और 10 के फैक्टर्स निकालेंगे. द फैक्टर्स ऑफ 8 आर. 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4 and 8. 8 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4 and 8. ये 8 के फैक्टर्स है. देन फैक्टर्स ऑफ 10 आर. 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 5 and 10. ये 10 के फैक्टर होंगे. अभी दोनों में कॉमन क्या है? 1 and 2 कॉमन है. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 10 आर. दोनों में कॉमन क्या है? 1 and 2. तो ये दोनों को प्राइम नंबर है क्या? नहीं. सो 8 and 10 आर नॉट को प्राइम. तो ये दोनों भी नंबर को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 and 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए. देन 7 नंबर. 7 नंबर में क्या है? 31 and 62. देखो, मैंने बोला था कि एक नंबर प्राइम है और एक नंबर कंपोजिट होता है, तो वो क्या नहीं होता है? वो को प्राइम नंबर होता है. लेकिन अगर हम 62 के फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 31 आता है. 62 के फैक्टर में 31 आता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या नहीं होगा? को प्राइम नंबर नहीं होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द फैक्टर्स ऑफ 31 आर. सो 31 इज द प्राइम नंबर. ये देखो लिस्ट में है, 31 इज द प्राइम नंबर. सो 31 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 and 31. 31 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 and 31. एंड देन 62 के फैक्टर्स हो जाएंगे द फैक्टर्स ऑफ 62 आर. 62 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 31 and 62. 62 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 31 and 62. क्योंकि 62 ये 31 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे आता है. 31 के टेबल में है 62, ये 2 वाले प्लेस में आता है. नाउ इसमें कॉमन क्या है? 1 and 31 बोथ आर द कॉमन. तो ये को प्राइम नंबर है. दिस इज द को प्राइम नंबर? नो. पहले हम लिख देंगे द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 31 and
62 आर। इसमें कॉमन क्या है, 1 एंड 31 कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर है क्या, नहीं। 31 एंड 62 आर नॉट को प्राइम। यहाँ पे 1 नंबर प्राइम है और 1 नंबर कंपोजिट है, फिर भी वो को प्राइम नंबर नहीं हो रहा है, क्योंकि 62 ये 31 के टेबल में आता है। अगर दूसरा नंबर प्राइम नंबर का मल्टीप्लाइज होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होता है। देन एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 इज द 28 33। सो पहले हम 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। द factors of 24 are। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1। हमने यहाँ पे निकाले थे, देखो 24 के, सॉरी नॉट 24, 28 है। 28 के फैक्टर्स क्या है, 1 होता है। देन 2, यस 2 आल्सो फैक्टर्स ऑफ द 28। देन 3 के टेबल में 28 आता है, नो। देन 4, यस 4 7 सा 24। देन 7 के टेबल में, यस। देन 8, नो। देन 7 के बाद 8 नहीं। 9, नो। 10, नो। देन 14 2 सा 28 एंड डायरेक्ट लास्ट इज द 28। 28 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 7 14 एंड 28। दिस आर द फैक्टर्स ऑफ द 28। अभी हम 33 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो द फैक्टर्स ऑफ 33 आर। तो 33 ये 2 के टेबल में नहीं आता है और 2 के साथ डिवाइड भी नहीं होता है। अगर हम 3 के साथ 33 को डिवाइड करेंगे तो 3 11 सा 33 होता है। तो यहाँ पे 33 का फैक्टर है एंड 11 एंड लास्ट इज द 33। यहाँ पे 33 क्या है, 33 1 के टेबल में आता है। देन 33 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 11 आता है। 11 के टेबल में 3 वाले प्लेस पे 33 आता है एंड लास्ट इज द 33। सो 33 फैक्टर इज 1 3 11 एंड 33। नाउ लुक एट हियर, 1 2 है क्या, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं। 4 11 7 33 नोट 14 एंड 28 नो। तो यहाँ पे कॉमन सीट क्या आ रहा है, 1 ही कॉमन आ रहा है। तो ये नंबर को प्राइम नंबर होगा क्या, यस। तो ये नंबर को प्राइम होगा। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 33 आर। इसमें कॉमन क्या है, 1 नंबर ही कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर है क्या, यस। सो 28 एंड 33 आर को प्राइम। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन 1 नंबर ही कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ example number 9, 10, 11 and 12. These are the homework for you. 9, 10, 11 and 12. These are the homework for you. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.